today we are going to state and prove some theorems based on chapter triangles, class 9th. Firstly, we will prove theorem number 1. Prove that angles opposite to two equal sides of a triangle are always equal. Angles opposite to two equal sides of a triangle are always equal. It means we are given a triangle with two equal sides. So given में हमने क्या लिखा? A triangle ABC. ABC. This one is a triangle, and in this triangle we have two sides. AB equal to AC. What is theorem? Prove that angles opposite to two equal sides. एक ट्राइंगल की दो इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल, अब सामने वाले एंगल्स की जब बात चलेगी, ए बी के सामने एंगल सी, ए सी के सामने एंगल बी, हमें प्रूव करना है सी इक्वल टू बी. दीज टू एंगल्स आर इक्वल. फर्स्टली कंस्ट्रक्शन. We will take a construction here. What will be the construction? We will draw bisector of this angle. Angle A का bisector हम draw करेंगे. This one. Let it be AD. हमने AD draw किया. What is AD? Bisector of angle A. तो यहाँ लिखेंगे draw AD, bisector of angle A. अगर AD bisector है, एंगल A को bisect कर रहा है एंड BC को मीट कर रहा है D पॉइंट पे, मीटिंग BC at D, such that if AD is the bisector of angle A, एंगल A को ये bisect कर रहा है, इसका मतलब एंगल A के ये जो दो पार्ट्स हुए, these two parts are equal. अब इन पार्ट्स के नाम क्या है? This one is BAD, this one is CAD. तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ such that let it be angle 1, this one is angle 2. We can write angle 1 is equal to angle 2. This is by construction. हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया? AD ड्रॉ किया. व्हाट इज AD? बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंड AD meets BC at point D. This is now proof of theorem. We will prove that angle C is equal to angle B. हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. In triangle ADB and triangle ADC, these two triangles, this one and this one, these are two triangles. इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है एंगल C is equal to angle B. Now these two angles are equal by construction. Then और यहाँ पे आपको क्या देखना है? AB is equal to AC. एक और पार्ट इक्वल हो गया. Then AD is common to both the triangles. AD is common, so AD is equal to AD. It means side angle side से हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. इस ट्राइंगल में AB is equal to AC. इस ट्राइंगल में AC. Then angle 1 AB is equal to AC. This one is given. After that, angle 1 is equal to angle 2. Why? This is by construction. By construction, these two angles are equal. यहाँ हमने लिया construction में. Third part, AD is equal to AD. Reason? Common. AD is common to both the triangles. That is, three parts of one triangle are equal to three corresponding parts of second triangle. Therefore, triangle ADB is congruent to triangle ADC by side angle side, SAS congruency. This one.
These two triangles are congruent. अब जब triangles congruent हो गई, AD is common to both. यहाँ आप देखेंगे AD के सामने एंगल B, यहाँ देखेंगे AD के सामने एंगल C. So angle B is equal to angle C. This is CPC. ये हमें प्रूव करना था, एंगल B इक्वल टू एंगल C. दिस इज थ्योरम 1. थ्योरम 1 क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल. तो ये हमने प्रूव कर दी. नाउ सेकंड वन, नाउ वी विल प्रूव थ्योरम 2. इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल. इसमें क्या है? इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, again we have a triangle ABC. Firstly we will ignore AD. AD हमें given नहीं है. क्या है? If two angles of a triangle are equal, it means we are given a triangle. Theorem 2. Again we are given a triangle ABC in which two angles are equal. Two angles are equal means angle B is equal to angle C. तो ये नहीं लेंगे. In which angle B is equal to angle C. This is given. Again statement क्या है? If two angles of a triangle are equal, then the sides opposite to the angles are also equal. आपको प्रूव करना है कि इन एंगल्स के सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी. हमने यूज किया बार बार एक्सरसाइज में कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. यही हम प्रूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम. अब B के सामने कौन सी साइड होगी? AC. C के सामने कौन सी साइड होगी? AB. सो वी विल प्रूव AC is equal to AB or we can say AB is equal to AC. हमें ये प्रूव करना है. अगेन हमने AD ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन ली. AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीटिंग BC एट D सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिया. हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC. फिर से हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्फ्रेंट करेंगे. नाउ व्हाट इज गिवन? हमें इक्वल साइड्स नहीं गिवन है, हमें गिवन है एंगल्स आर इक्वल. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. सो कैसे प्रूव करेंगे? दो ट्राइंगल्स को कॉन्फ्रेंट करेंगे. फर्स्टली एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एक पार्ट हो जाएगा. देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सेकेंड पार्ट हो जाएगा. थर्ड पार्ट AD इज इक्वल टू AD कॉमन. In both the triangles, firstly in triangle ADB we have angle B equal to angle C in this triangle. Reason given, angle 1 is equal to angle 2 by construction लिया हमने. AD is equal to AD, this one is common, so both the triangles are congruent. जब दोनों triangles congruent हो जाएंगी, यहाँ रूल कौन सा अप्लाई हुआ? This one is angle, this one is angle, then side. Angle, angle, side. So रूल लिखेंगे हम by AS congruency. When two triangles are congruent, then the corresponding parts are said to be equal. So इस triangle में corresponding part मैं लूँगा AB, and in this triangle we have AC. AB is equal to AC. Rule is CPCT, that is corresponding parts of congruent triangle. When two triangles are congruent, then their corresponding parts are always equal. This is theorem 2. Now we will prove theorem 3. Theorem 3 is very important theorem. Theorem 3 is ASA congruency. हमने बार बार क्वेश्चंस में यूज किया. इसी को अब हम प्रूव करेंगे. ASA congruency. What is statement? Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to corresponding two angles and the included side of other triangle. तो देखिए we are given two triangles. We are given two triangles here. One and two.
Firstly, we will draw. This one is a triangle. This one is another triangle. These are two triangles. Now, what is statement of theorem? Two triangles are congruent. It means we are given two triangles. नाम इनके हम कुछ भी रख सकते हैं. Let it be ABC and PQR. Two triangles are congruent if given क्या है? Two angles and the included side of one triangle. Two angles. Suppose these are two angles. Included side. इन दोनों angles के साथ कौन सी side है? BC. Two angles and the included side of one triangle are equal to corresponding two angles. इनके corresponding these are two angles and the included side of second triangle. So this one is given. क्या given है आपको? Angle B is equal to angle Q. Angle C is equal to angle R. BC equal to QR. This one is given. हमें prove क्या करना है? These two triangles are congruent. एक बात का ध्यान रखना है, ASA congruency को हमने prove करना है. That's why हम congruent करते हैं time. We can't make use of this congruency condition. Okay? What is given? We are given two triangles. Two triangles. कौन कौन सी triangles है? ABC and PQR. Such that angle B is equal to angle Q. Angle B is equal to angle Q. Then angle C is equal to angle R and BC is equal to QR. This one is given. Angle B is equal to angle Q. Angle C is equal to angle R and BC is equal to QR. Prove क्या करना है हमें? To prove then the triangles are congruent. हमें यही prove करना है. Yes. To prove triangle ABC is congruent to triangle PQR. This one. Proof. When we are going to prove the result, that is these two triangles are congruent, that is we are going to prove ASE congruency condition. जब हमें ये prove करना है these two triangles are congruent, we have different kinds of cases here. ASA हम इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते, और कोई कंडीशन अप्लाई करनी है किसी और कंडीशन के लिए. फॉर एग्जांपल इफ वी आर गोइंग टू प्रूव द सेम थ्योरम ऑन द बेसिस ऑफ SAS, अगर हमें SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन अप्लाई करनी है तो हमारे पास दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए. अब ये दो साइड्स, कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, हमें सपोज करना है ना. अगर मैं सपोज कर लूँ कि AB इक्वल टू PQ, बट AB इक्वल टू PQ भी हो सकता है, AB लेस देन PQ भी हो सकता है, AB ग्रेटर देन PQ भी हो सकता है. तो हम तीनों कंडीशंस को लेके यहाँ पे चलेंगे. इफ AB इज इक्वल टू PQ तब क्या होगा, इफ AB इज लेस देन PQ तब क्या होगा, इफ AB इज ग्रेटर देन PQ तब क्या होगा. सारी कंडीशंस को देखेंगे. मैं यहाँ लिखूंगा 3 केसेस अराइज है. यहाँ 3 केसेस हैं. अब कौन कौन से केसेस? केस 1, केस 1 क्या हो सकता है? व्हेन
फर्स्ट केस में ऐसा ले रहा हूँ व्हेन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। जब मैं ये सपोज करके चलता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, एक केस मैंने ये ले लिया, अब क्या होगा, इन दो थ्योरम्स को मुझे, इन दो ट्राइंगल्स को मुझे कंप्लीट करना है, बट मुझे ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी को यूज नहीं करना, बट हमें कंप्लीट करना है दोनों ट्राइंगल्स को। फर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, जब ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल होंगे। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है या नहीं। व्हाट इज गिवन, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये केस है अकॉर्डिंग टू केस वन। देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। Why? This one is given. BC is equal to QR. Why? Again given. BC is equal to QR is given. So, three corresponding parts are equal. एक part AB था, एक एंगल B था, एक BC था। आप देख रहे हैं, this one is AB, this one is BC, दोनों के बीच का एंगल, मतलब दो साइड्स के बीच का एंगल, दो साइड्स के बीच, S के बीच एंगल A, दैट इज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड, हमने ASA का यूज नहीं किया, देयरफॉर ट्राइंगल व्हिच वन, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड। एक केस हमने प्रूव कर दिया। We have to verify ASA congruency. ASA congruency के लिए हमारे पास 3 केसेस होंगे when AB is equal to PQ, AB equal to PQ लेके हमने दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर दिया congruent. Now case 2. केस 2 में मैं सपोज कर रहा हूँ when अब इसमें क्या होगा, when AB is not equal to PQ। जब मैं ये कह रहा हूँ कि AB PQ के बराबर नहीं है, अगर PQ के बराबर नहीं है तो इट मीन्स या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा, रादर इक्वल नहीं है, क्या है, अगर इक्वल नहीं है तो लेस या ग्रेटर हो सकता है। मैं सपोज कर रहा हूँ ए बी इज लेस देन पी क्यू। देखिए ए बी पी क्यू से छोटा है, या फिर मैं ये बोल दूं कि ए बी पी क्यू से, पी क्यू ए बी से बड़ा है, पी क्यू इज ग्रेटर देन ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों साइड्स हैं पी क्यू और ए बी, इनमें से पी क्यू साइड बड़ी है। अगर पी क्यू साइड बड़ी है इसका मतलब ए बी साइड छोटी है, तो ए बी किसके बराबर होगी, अगर पी क्यू से छोटी है तो थोड़ी कम होगी इससे। तो मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे बीच मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम मैंने रखा एस। मैं सपोज कर रहा हूँ कि ए बी जो है वो क्यू एस के बराबर है, क्योंकि पी क्यू के बराबर नहीं है, ये अभी हमने यहाँ पे लिखा पी क्यू से छोटा है ए बी, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि ए बी क्यू से लेके एस तक सिर्फ इतना है। लिखेंगे लेट अस सपोज AB is equal to SQ where AB SQ के बराबर है, जहाँ S क्या है, where S lies on PQ, S कोई पॉइंट है PQ के ऊपर। तो इसको मैं ज्वाइन करूंगा ऐसे, जब इसको ज्वाइन किया अब मैं इन दो ट्राइंगल्स को कन्वर्ट करके देखूंगा, कौन सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एस क्यू आर। इन ट्राइंगल विच वन, ए बी सी एंड ट्राइंगल एस क्यू आर, इन दोनों को कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होगा। इन दोनों को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ व्हाट विल हैपन, ए बी सी ट्राइंगल में ए बी, एस क्यू आर ट्राइंगल में एस क्यू।
अभी हमने सपोज किया कि ये दोनों इक्वल है, एक पार्ट हो जाएगा। देन एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन था, बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन, मतलब 3 पार्ट्स इक्वल हो गए, सो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। यस, ए बी इज इक्वल टू एस क्यू, यहाँ पे है, इसको मैं लिखूंगा सपोज्ड, और वी कैन से सुपोजिशन एज पर और assumption these two are equal. Angle B is equal to angle Q given BC is equal to QR. These two are also equal. BC and QR given. Therefore, triangle ABC congruent to triangle SQR. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। एक बार फिर ध्यान में रखेंगे, हमने ASA यूज नहीं किया, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। ओके, सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स कौन सी? ABC एंड दिस वन इज SQR. If these two triangles are congruent, then their corresponding parts should be equal. अब corresponding parts कौन से ले रहे हैं हम? मैं एंगल B ले रहा हूँ और साथ में यहाँ से एंगल Q, ये तो गिवन है ऑलरेडी। यहाँ से एंगल C ले रहा हूँ, यहाँ से एंगल R ले रहा हूँ। इस ट्राइंगल में R मीन्स SRQ, यहाँ से C मीन्स ACB, तो ऐसा लिखेंगे एंगल ACB is equal to this one SRQ. CPCT corresponding parts of congruent triangles. एक बार फिर देख लें, हमारे पास ये ट्राइंगल है SQR. These two triangles are congruent. इसका मतलब इन दोनों के corresponding parts इक्वल होंगे. So this one ACB, that is C angle, is equal to SRQ, मतलब ये एंगल. But ACB according to question आप देख रहे हैं C angle. ACB means C. C एंगल किसके बराबर है? R के बराबर. अब R कौन सा था वहाँ पे? C इक्वल टू R. यहाँ R का मीनिंग था दिस वन कंप्लीट एंगल PRQ. मैं लिखूंगा बट ACB इक्वल टू PRQ. एंगल C is equal to R means एंगल ACB इक्वल टू दिस वन इज R, PRQ. सो अगर मैं इसको मैं इक्वेशन 1 लेके चलता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 लेके चलता हूँ। अब ये दोनों इक्वल क्यों है? ये दोनों के इक्वल हैं, दिस वन इज गिवन में मैं मेंशन कर देता हूँ एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. बात एक ही है. ओके, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकल रहा है? ACB इज कॉमन टू बोथ, SRQ इक्वल टू PRQ. SRQ is equal to PRQ. SRQ equal to PRQ. इसका मतलब ये हुआ SRQ कौन सा एंगल है? दिस वन. और PRQ कौन सा एंगल है? दिस वन. अब ये दोनों एंगल्स, SRQ इज पार्ट, दिस वन इज होल. आपने ये पढ़ा होगा, यूक्लिड ने कहा है अ पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू इट्स होल. पार्ट कभी भी होल के बराबर नहीं हो सकता. अ पार्ट, दिस वन इज अ पार्ट. SRQ ये एक पार्ट है किसका? इस पूरे एंगल का, PRQ का. तो होल और पार्ट दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर कब हो सकता है? जब ये P और S दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे. ये बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकते, बट इट इज possible only if. ये कब पॉसिबल है? जब S and P lie at same point. अगर ये दोनों सेम पॉइंट पर लाई करेंगे, इसका मतलब हमने जो सपोज किया था कि SQ AB के बराबर है, therefore हमने क्या सपोज किया था? SQ इज इक्वल टू AB. बट अभी हम कह रहे हैं कि S और P एक पॉइंट पे हैं, इसका मतलब PQ इज इक्वल टू AB. देयरफॉर PQ इज इक्वल टू AB.
हमने क्या कहा था, या फिर ऐसा लिखें इसको, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। अगर ए बी पी क्यू बराबर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट एस क्यू। ए बी किसके बराबर है, चलो नॉट ना भी लिखें, हमें ये प्रूफ हो गया कि ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। यहाँ हमने सपोज किया था कि ए बी पी क्यू के बराबर नहीं है, मतलब हमने जो सपोज किया था, हमने अपनी सपोजिशन को ही गलत प्रूव कर दिया। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है तो जस्ट लाइक केस वन, जब केस वन में ए बी इक्वल टू पी क्यू था तो हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया था। मैं लिखूंगा फ्रॉम केस वन, केस वन से हमने क्या रिजल्ट निकाल लिया, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहां से भी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। एक बार फिर सोच लें, केस वन व्हेन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू both the triangles are congruent. Case 2 when we suppose that these two sides are not equal, even then we can prove that these two triangles are congruent. Now case 3 में हमने क्या suppose करना है, again case 3 में हम ये suppose करेंगे AB is not equal to PQ, that is AB is greater than PQ. अगर AB greater than PQ हम suppose करते हैं, similarly in इसी तरीके से अगर हम एक और केस लेते हैं, विच वन, ए बी ग्रेटर देन पी क्यू, अगर मैं ये भी सपोज करके चलता हूं तो हम क्या प्रूव कर लेंगे, सिमिलरली लिखा ना, इट मीन्स इसी तरीके से हम वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय SAS congruency. So this is our theorem ASA congruency कि अगर दो ट्राइंगल्स में टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात कर रहे हैं, if two sides and the included angle of one triangle are equal to two sides and the included angle, corresponding angle of another triangle, then we can say these two triangles are congruent. तो हमने तीनों पार्ट्स में वन बाय वन ये प्रूव किया, these two triangles are congruent. So this is our theorem ASA congruency. Thank you.